الذین هم فی صلاتهم نبی کا لب پر جو ذکر ہے وہ بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے وہ بے مثال آیا کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل کالا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل کالا. کالے رنگ کا جو غلام آیا بلال آیا کمال آیا. سامعین محترم، بزرگوں اور دوستو، ایک دن اور رات دے اندر ہر مسلمان تے 5 نمازاں اللہ نے فرض کیتیاں نے، رسول پاک نے فرض کیتیاں نے. جس طرح دن اور رات دے اندر 5 نمازاں ہر مسلمان تے فرض ہے، ان 5 نمازاں نو سیکھنا، اس دا طریقہ ہر مسلمان مومن تے لازم اور فرض. اے جڑی بات معاشرے دے اندر تساں بھی سنیے، جڑی میں بھی سنیے، کہ کوئی جتھے لگا رہندے ہو، کوئی گل نہیں، انہوں اوویں کرتا رہندے ہو، او دی لو رب نہ لگی ہے، لگی رہندے ہو. ایک بندہ اپنے گھر دے اندر جاندا ہے، اپنی بیوی نو کہندا ہے امی جی مینوں پانی دے دے، وہ کی خیال ہے وہ صحیح جگہ تے لگا ہے؟ گل دی سمجھ نہیں آئی؟ ہاشمی صاحب ذرا توجہ کرو. ایک بندہ اپنے گھر دے اندر جاندا ہے، جا کے اپنی بیوی نو کہندا ہے امی جی مینوں پانی دے دیو، بیوی نو کہندا ہے وہ صحیح لگا ہے؟ سارے بندے روکن گے ٹوکن گے، بھائی ٹھیک ہے لیکن تیرا رشتہ یہ نال بیوی والا ہے، ماں والا نہیں، تو ماں نہیں کہہ سکتا. اے تو لفظ جڑا کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، اسی روکاں گے ٹوکاں گے. لہذا جڑی مثال بنی ہے نا، کوئی جتھے لگا رہن دیو، جویں کوئی نماز پڑھتا ہے پڑھ لین دیو. چلو نماز تے پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، نماز تے پڑھتا ہے، بے شک نماز پڑھتا ہے، لیکن کوشش کرو انہوں پیار محبت دے نال قرآن سناؤ، نبی پاک دا فرمان سناؤ. بریلوی، وہابی، دیوبندی، شیعہ اے مسلک دے تعصب چو نکل کے رب دا قرآن سناؤ، نبی پاک دا فرمان سناؤ. اگر تے انہوں نبی پاک دی ذات نال پیار ہوئے گا تو آپ دی بات نو مانے گا، تسلیم کرے گا، پیار کرے گا، اس تے عمل کرے گا. اگر تے انہوں مسلک دیوبند پیارا ہے، مسلک اہل حدیث پیارا ہے، انہوں مسلک بریلویہ پیارا ہے، مسلک اہل تشیع پیارا ہے، تے ٹھیک ہے اپنے مسلک مگر لاگ کے، اپنے امامہ مگر لاگ کے، وہ جویں نماز پڑھتا ہے او دا امام دستا ہے پڑھی رکھے. باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آ جان تو بعد کسے وہابی، دیوبندی، کسے شیعہ نو حق حاصل نہیں. اور نبی دی حدیث نو پیچھے رکھ کے اپنے مسلک، اپنے امام دی گل من کے نبی پاک دی بات نو چھوڑ دے. ایک بندہ سوال کرتا ہے حضرت جی اسی نماز کیویں پڑھیے؟ وہابیاں دی مسجد جائیدا ہے او نماز انج پڑھدے نے، بریلویاں دی مسجد جائیدا ہے او انج پڑھدے نے، دیوبندیاں دی مسجد جائیدا او انج پڑھدے نے. ایک ہور گروہ ہے
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿਹਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਬਗੈਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਝਗੜੇ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇਖਤਿਲਾਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨ। ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਹੈ ਵੇ? ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਦਲਾਇਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਅਮਾਨਤ ਔਰ ਦਿਆਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਮਸਲਕੀ ਤਾਸਬ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿੰਬਰੇ ਰਸੂਲ ਕਿਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਔਰ ਹਮ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ, ਆਪਣੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਪੂਰੀ ਅਮਾਨਤ ਔਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਦਮ ਜੰਨਤ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂ ਖਿਆਨਤ, किसी भी मसले नू वेख के, अपने मसलक नू वेख के, मसलकी तासब अंदर याद रखना मेरा कदम, हर उठन वाला कदम जहन्नम दी तरफ है। और जहन्नम दे कोलों बचाना मैनू किसे वहाबी कोई नहीं, किसे देवबंदी कोई नहीं और किसे बरेलवी कोई मेरी कबर अंदर आके मैनू किसे नहीं छड़ाना। ते मैं क्यों मसलकी तासब अंदर पै के फिरका वारियत दी गुफ्तगू करके तुहानू भड़का के या लोगों नू भड़का के जिथों तक मेरी बात जाए मैं भड़का के चला जावां ना। मैं पूरी अमानतदारी दे नाल, दयानतदारी दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नमाज तुहाडे सामने दलाइल दी रोशनी अंदर पढ़ के दसांगा। कोशिश करांगा नाल नाल हवाले दई जावां। अगर कोई हवाला रह जाए बाद दे अंदर मैं इत्थे ही हां ते तसल्ली कर लवे किसी शख्स दे दिल अंदर कोई किसे रत्ती बराबर भी अगर कोई बात रह जाए कि इंज नहीं ते इंज सी मैनू दिखाओ, अलहमदुलिल्लाह मैं तुहाडा पाबंद हां। एक एक तुहाडे सवाल का जवाब देंदा उस वक्त तक अलहमदुलिल्लाह मिंबर नहीं छोड़ांगा, ए मुसल्ला नहीं छोड़ांगा जब तक तुहाडे इतराज़ात दी मैं तसल्ली ना करवा देवां। क्यों? अलहमदुलिल्लाह ये फखर नहीं, मैं जो कुरान हदीस पढ़े अलहमदुलिल्लाह पूरी अमानत दयानतदारी दे नाल अलहमदुलिल्लाह पढ़न तो बाद ये नहीं कि सुन सुना के आके मैं तुहाडे सामने खड़ा हो गया, नहीं, मैं पढ़ के पूरी पड़ताल करके दलाइल नू सामने रख के इंशाअल्लाह बात नू अर्ज करांगा ते अपने ज़हन दे अंदरों ना मसलकी तासब बिल्कुल कढ़ के बहना। तुसीं ये नहीं कहना ए की किना दा मौलवी है किना दा नहीं, नहीं नहीं नहीं। अगर कोई बरेलवी भाई है बड़े अदब ना गुजारिश करांगा, देवबंदी भाई है बड़े अदब ना गुजारिश करांगा, मसलकी तासब अपने दिलो दिमाग चो कढ़ के ए मैं नमाज़े नबवी बयान करांगा। इस नमाज़े नबवी वास्ते सब नालों पहले इस बयान नू शुरू करन तो पहले 4 हदीसां अपने ज़हन नशीन कर लो। किनियां हदीसां? बोलो किनियां? नहीं पे बोल दे की गल है, किनियां हदीसां? 4 हदीसां। सब नालों पहली हदीस, जिस वक्त बंदा बावुजू होके तहारत करके नीयत करके रब दे सामने आके खड़ा होके कहंदा है ना अल्लाहु अकबर, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सही हदीस है, मेरे मुर्शद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल पाक फरमांदे ने रब दी रहमत ओदे इस्तिकबाल अंदर ओदे सामने खड़ी हो के उस अपने रब दे नमाजी बंदे दा इस्तिकबाल करदी। रब दी रहमत जदों असीं नमाज वास्ते खड़े हो जाने आ सामने की है रब दी रहमत वो इस्तिकबाल कर रही हुंदी है नमाजी बंदे दा। मैनू दस नमाज पढ़ना कितना प्यारा अमल है जिदा इस इस्तिकबाल वास्ते रब दी रहमत उतरे। दूसरी रवायत, ये रवायत इसलिए सुनाई है ताकि नमाज के अंदर एक ज़ौक, इबादत अंदर ज़ौक शौक पैदा होए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस फरमान की वजह दे नाल। दूसरे नंबर ते जिस वक्त बंदा अल्लाहु अकबर कह के नमाज अंदर तकबीरे तहरीमा कह के नमाज अंदर दाखिल हो जाता है, मेरे रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ बंदा रब दे नाल सरगोशियां करदा है, गल्लां करदा है। दुनिया ना राबते खत्म, रब ना गल्लां शुरू हो जांदियां ने, अल्लाह जी मैनू इंज कर दे, अल्लाह जी रिज़क दी कमी है। पूरे नमाज के अंदर दुआ ही दुआ है, पूरी नमाज अंदर बख्शिश ही बख्शिश है, पूरी नमाज अंदर तेरे रिज़क दे खजाने ही खजाने ने। अगर दिल लगा के बात तर्जमा जरा हौसले ना तसल्ली दे नाल नमाज पढ़े, अल्लाह दी कसमें दिल ही नहीं करता बंदा क़याम तो रकू अंदर चला जाए, जे रकू अंदर चला जाए दिल ही नहीं करता सर उठा ले, अगर सर उठा के सजदे अंदर चला जाए इंज में कि जिवें रब दे कदमां दे अंदर रब दे बंदे ने सर रख के रब कोलों रब दियां तारीफां बयान करके बख्शिश ते मगफरत पिया मंगदा है। तीसरी हदीस,
नबी पाक सल्लम दी दुआ हदीस दे अंदर है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा दुआ कीता करते सन। केड़ी दुआ करते सन? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन सलातिन ला तनफ़उ, ए अल्लाह ऐसी नमाज पढ़न दी मैनू तौफीक ना दई कि मेरी नमाज मैनू फायदा ही ना दे। यानी मेरे पाक पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार पैगंबर भी रब कोलों दुआ करते सन, मंग के लेंदे सन वो नमाज जिहड़ी फायदा देंदी है, क्योंकि सारे दे सारे फवायद अगर रखे ने नमाज अंदर। असी अपनियां जरा तुसी अपनियां नमाज़ां चेक करो, मैं अपनी नमाज चेक करा, क्या सानू साडी नमाज फायदा दे रही है या नहीं दे रही? नमाज पढ़ के निकलने बाहर जाके दुकान ते 2 नंबरी असी करने, तेरी नमाज ने ला तनफ़उ कोई फायदा नहीं दिता। नमाज पढ़ने सजदा करने, मस्जिद चो निकलने एक दूजे दियां चुगलियां और गीबतां करने, मेरे प्यारे भाई तेरी नमाज ने तेनू फायदा रत्ती बराबर नहीं दिता। टाइम लाया, दुकान बंद की है, मस्जिद गए, ठूंगे मार के आ गए, सजदे करके आ गए, सिर्फ कादे वास्ते? लोगों को दिखाने वास्ते कि मैं नमाजी हाँ। नमाज एक पढ़ता रखे 2 नंबरी करने वास्ते एक मुसलमान ने। वो मुसलमान भाभी होए, देवबंदी होए, बरेलवी होए, मैं सारियां नूं मुखातब करके नबी दे जेड़ा भी उम्मती है मुखातब करके अर्ज करांगा, मेरे प्यारे भाई तेरी नमाज ने तेनू रत्ती बराबर फायदा नहीं दिता। सहाबा इकराम नमाज पढ़ते सन, 2 रकअतां पढ़ते सन, बंद दरिया रब खोल देंदा सन 2 रकअत बरकत की वजह दे नाल। 10-10 साल हो गए नमाज़ां पढ़ते, सजदे करते, क़याम करते, रुकू करते, साडियां रिज़्क अंदर इजाफा नहीं होया, साडी जिंदगी अंदर बरकत ते नूर नजर नहीं आ रहा। वजह की है? सानू साडी नमाज फायदा नहीं दे रही। मेरे पैगंबर ने रब कोलों पनाह मंगी है ऐसी नमाज दे कोलों, अल्लाह पनाह दे कि जड़ी मैनू फायदा ना दे, नमाज ऐसी होए जड़ी फायदा दे। इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, रब दा कुरान है, कुरान अंदर आयत मौजूद है, रब ने फरमाया बेशक नमाज बुरे कम्मां तो रोक दी है। वो नमाज नहीं, नमाज पढ़ के घर दे अंदर जाके वही बेहयाई दे काम करे। ला तनफ़उ, ऐसी नमाज अल्लाह मैनू ना दई कि जड़ी मैनू फायदा ना दे। इतने साल हो गए नमाज़ां पढ़ने, लेकिन फहाशी फिर भी उरूज दे ऊपर है। क्यों? साड़ी नमाज फायदे वाली नहीं। अगर नमाज पढ़ रहे हैं घर के अंदर माशाअल्लाह माहौल नमाजियां वाला है, घर के अंदर बापर्दगी मौजूद है, घर के अंदर माशाअल्लाह सुकून है, रिज़्क अंदर इजाफा हो रहा है, नमाज पढ़ रहे हैं, बाल बच्चे फरमा बरदार ने, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी नमाज रब नूं कबूल है, फायदे वाली नमाज है। मैं रब कोलों दुआ करना, मालिक सोने जिन्नियां असी नमाज़ां पढ़नियां यकीनन अल्लाह सोने यकीनन 100% असी उंज नहीं पढ़ सके जिवें तेरी शान दे लायक सी, जिवें तेनों पसंद सी, लेकिन अल्लाह सोने जिवें असां पढ़ लिया नबी दे उम्मती समझ के साडियां नमाज़ां नूं अपनी रहमत दे नाल कबूल ते मंजूर फरमा ले। अल्लाह साडा एक एक सजदा एक एक क़याम असां नहीं कर सके उस तरह जिवें करन दा हक सी, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत दे नाल मंजूर ते मकबूल फरमा ले। चौथी बात, तीसरी बात, अल्लाह पाक दे कोलों नबी पाक दुआ कीता करते सन, पनाह मंगते सन, ऐसी नमाज मैनू ना दे जिहड़ी फायदा ही ना दवे। चौथी बात, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी ने, इब्ने माजा दी रिवायत है, फरमाया अस्वाउन नासी सरकतन अल्लज़ी यसरिकु सलातहु, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा कायनात दा सब तो वड्डा चोर अगर वेखना जे ना, वो चोर है जिहड़ा नमाज दे अंदर चोरी करदा है। कैफा यसरिकु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़े ते नमाज चोरी करे, केड़ा बंदा हो सकता है चोरी करे? रसूल पाक ने फरमाया हाँ, एक बंदा होंदा है जल्दी जल्दी वुजू करता है, वुजू करके अल्लाह अकबर करता है, ना पूरी अच्छी तरह रकू करता है, रकू तो सर उठाता है, जल्दी जल्दी खलोंदा नहीं, तसल्ली नहीं करता, सजदे अंदर दूसरे सजदे जलसा इस्तराहत कीता कोई नहीं, फौरी तौर पर सजदा किया, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, चला गया। फरमाया है सब तो बदतरीन चोर है।
میں ایک روایت پڑھن لگا, روایت اور سندن صحیح روایت ہے. نبی پاک نے فرمایا شرابی شراب پیندا ہے شراب نالوں وڈا گناہ ہے. شراب بہت بڑا گناہ ہے, دا مطلب نہیں شراب پینا کوئی ثواب دا کام ہے یا اجازت مل گئی ہے, نہیں نہیں. میرے نبی پاک نے سمجھایا مسئلہ, فرمایا جڑا بندہ نماز دے اندر جلد بازی کردا ہے, چوری کردا ہے, اے شرابی نالوں وڈا مجرم ہے. ویکھو ہاں ساڈیاں نمازاں دی حالت کی ہے, اللہ اکبر نہ صحیح طرح ہاتھ بننے نے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, جلدی جلدی چتر چتر کر کے پڑھ کے دے کٹ وڈ کے اور رکھ دیتا ہے, رکوع کیتا ہے, سجدہ کیتا ہے, سلام نہ سنتا پڑھیا نہ خیال ہے, او چلا گیا ہے. اے حاجی صاحب نمازی صاحب ہے, ایہی نماز بول کے آندی اللہ سونیا جس طرح اس بندے نے مینوں تباہ کیتا ہے, نماز رب کولوں بد دعا کر دی اس بندے دے حق دے اندر, اللہ اس بندے نوں تباہ کر دے, اس بندے نو برباد کر دے. مینوں دسو یہ حدیث سنن تو بعد پڑھن تو بعد ساڈے تے لازم ہے نماز دا طریقہ سکھیے. نماز کیویں رسول پاک نے پڑھی ہے. جس وقت ایک ڈرائیور ڈرائیوری کرتا ہے اس وقت تک وہ سیٹ تے ڈرائیونگ والی نہیں بہن دیندے, ایسا جب تک لائسنس نہ ہوئے, جب تک وہ سکھی نہ ہوئے. وہ بزنس مین بزنس اسی نہیں کرن دیندے اپنے بچے نو جب تک کسی دے کول سال 2 سال لا کے گر سیکھ نہ لے بزنس سے. اساں نہیں اس بچے دے ہاتھ اندر گڈی دیندے جنوں ڈرائیونگ دا پتہ نہیں, لیکن نماز دی واری آئی اسی سیکھدے ہی کوئی نہیں, دین دی واری آندی ہے سانو سمجھ ہی کوئی نہیں, اسی کی کریے. مولویاں نے انج کرتا یار رہن دے مولویاں نو, یار رب نے تینوں عقل نہیں دیتی, رب نے اکھاں نہیں دتیاں, معاشرے اندر سب کچھ موجود ہے الحمدللہ, موبائل موجود ہے جدی اندر پوری لائبریری ہے, احادیث ہے, پڑھتا رہ سوال کرتا رہ, تیرے علم اندر اضافہ ہوندا رہے گا. دین دی واری ہوندی ہے نہیں مولوی جی دین دے معاملے میں نہیں گل کرنی, میں نہیں بحث کرنی, باقی ہر کام اندر بحث کرنی ہے. ادھار سودا لینا دینا ہے, تھوڑی جی بحث کرے تے حدیثاں سناؤن بہ جاندا ہے. یار نبی پاک نے فرمایا سودا بحث کر کے لینا چاہیے. ہاں اے حدیث تینوں اوتھے یاد آ گئی ہے, کیوں یاد آ گئی ہے, تے دنیا داری دی گل ہے, اے حدیث تینوں اوتھے یاد آ گئی ہے, لیکن نماز پڑھن والی دین دے مسئلے والی تینوں کوئی حدیث یاد ہی نہیں ہوندی. حضرت جی غور کرو اپنی نمازاں دے اوپر, ساڈی ساری تباہی دا سامان جڑا ہے. میں اس جمعے ایک عنوان سلیکٹ کیتا لیکن اس عنوان نو پیچھے رکھتا, دوسرا کیتا وہ بھی رہتا, لیکن لبے لباب کی نکلیا جس بندے دی نماز صحیح نہیں میرے پیارے بھائیو دا ککھ صحیح نہیں ہو سکدا, کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا جدی نماز صحیح نہیں. اس واسطے لازم ہے نماز نو تسلی دے نال پڑھیے اور ایسے طریقے تے پڑھیے جڑی رسول پاک نے پڑھ کے صحابہ نے پڑھ کے ساڈے تک پہنچائیے. اللہ پاک سانو صحیح سنت دے مطابق نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. کی گل ہے نیویاں پا لیاں نے, احمد بھائی ذرا توجہ کرنا, گفتگو بڑی اہم ترین گفتگو ہے, ذرا توجہ کرنا, غور کرنا. میں رب دا قرآن پڑھنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھنا تے نماز دا جڑا صحیح طریقہ ہے میں اس نو بیان کرن دی کوشش کرنا. ذرا گل دی سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ, بالکل صحیح سمجھ آ رہی ہے. ذرا توجہ کیجئے, پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جی, اے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی اپنی زبان نبوت جو فرما دیجئے. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. او کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں, اگر کامیابی کامرانی چاہتے ہو او مومن کامیاب ہے. اے سونے محبوب جی کیڑے مومن کامیاب ہے؟ فرمایا الذی او مومن ہم فی صلاتہم خاشعون, جنہاں نے اپنی نماز اندر خشوع پیدا کر لیا, خضوع پیدا کر لیا, او مومن کامیاب ہے, او مومن کامران ہے. اے سونے محبوب جی نماز اندر خشوع کیویں پیدا ہوئے گا, نماز اندر خضوع کیویں پیدا ہوئے گا؟ اے 3 روایتاں میں پڑھن لگا, اے 3 روایتاں سن لو تاکہ بات سمجھن دے اندر آسانی ہو جائے گی. سب نالوں پہلی بات, نماز پڑھن تو پہلے اے حدیث جیڑی ہے اپنے ذہن نشین کر لینا, یاد کر
लेना, हिफज कर लेना। मेरे पैगंबर ने फरमाया अफजलुल आमाली अस्सलातु अव्वलुल वक्तिहा। मेरे पैगंबर ने फरमाया नमाज सारे जितने अमाल ने रब नूं बड़े पसंद है, लेकिन सारे अमलों दे अंदरों नमाज नूं वक्त ते अदा करना सारे अमलों नालों ज्यादा पसंद है। नमाज ते पसंद है, लेकिन नमाज नूं उहदे वक्त ते अदा करना फरमाया कि सारे अमलों नालों पसंद है रब नूं। जिन्ने भी अमाल है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, उमरे वे, जिन्ने भी अमाल है बड़े अफजल है, लेकिन सारे अमाल चो रब नूं जिहड़ा पसंदीदा अमल है नमाज नूं उहदे वक्त ते अदा करना। पर्दे अंदर मावा बहना बेटियां अगर सुन रही ने, मावा बहना बेटियां तवज्जो करन मेरी गुफ्तगू की तरफ, जरा मुतवज्जी हो जान। घरां दे अंदर औरतां जोर असर दे नाल इकट्ठियां कर लैंदियां ने। मेरी भैन तेनू इजाजत नहीं, घर के अंदर है, अगर जमात ना नहीं पढ़ सकती तेरे ते फर्ज नहीं जमात ना पढ़ना, लेकिन जिस वक्त अजान हो जाए तेरी नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा, उस नमाज के वक्त के अंदर अजान और जेड़े 10-15 मिनट ये अंदर वुजू करके मुसल्ले ते आना तेरे ते लाजम है, फर्ज है, वरना तेरिया नमाज़ां तेरे मुंह के उत्ते मार दित्तियां जाणगियां। नमाज़ां भी पढ़नियां ने, सजदा भी करना है, क़याम भी करना है, रुकू भी करना है, अपने काम काज नूं छड्डना भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने जल्दबाजी अंदर कर देना है या मन मर्जी दे टाइम ते पढ़ना है। मेरे प्यारे भाईओ नमाज का वक्त मुकर्रर है, ये तेनू मैनू हक हासिल नहीं मन मर्जी दियां नमाज़ां पढ़िए जोर अच्छा कोई गल नहीं गुजर गई असर ना पढ़ लवांगे। और इत्थे एक मसला चलदे शेख साहब, एक बंदे दी जोर दी नमाज रह गई है, वो चला गया मस्जिद के अंदर, असर दी जमात खड़ी है, हुण की करेगा बंदा? असर दी जमात खड़ी है, जोर दी उस बंदे दी रह गई है, हुण की करेगा भला? असर दी पढ़ेगा इमाम दे पिछे, फिर जोर दी पढ़ेगा, ओदी जोर दी नमाज रब ने कबूल नहीं करनी। क्यों? नमाज़ां दी जिहड़ी तरतीब है ये लाजम है, जरूरी है, फर्ज है। पहले फजर होएगी, फिर जोर होएगी, फिर असर होएगी। ये नहीं हो सकता मैं असर पढ़ लवां फिर जोर पढ़ा, पहले मगरब पढ़ लवां फिर असर पढ़ा। हाँ अगर मजबूरी की वजह ना सफर के अंदर रह गई है, अगे मस्जिद गया जमात खड़ी है असर दी, तू जाके नीयत कर लैनी है केड़ी? जोर दी। इमाम दी अगों इमाम दी जेड़ी है असर दी हो जाएगी, सारियां दी असर दी, लेकिन तेरी जोर दी हो जाएगी। ए फिका मुहम्मदी दा मसला मैं सिक्का बद रवायत पेश कर रहा, ए फिका हनफी दा मसला नहीं बयान कर रहा। ए फिका हनफी दे अंदर लाजम है, जरूरी है इमाम दी ते मुक्तियां दी नीयत एक होए, लेकिन फिका मुहम्मदी दे अंदर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी फिका दीन इस्लाम शरीयत दे अंदर अगर मुक्तदी और इमाम दी नीयत तब्दील हो जाए, ओदी तिन्ना दी हो जाए, ओदी दोवां दी हो जाए, ये फर्ज लाजम जरूरी नहीं। नमाज़ां दा वक़्त और तरतीब, वक़्त अगर मजबूरी की वजह के नाल अगे पिछे हो जाए, लेकिन तरतीब लाजम है। असर की जमात खड़ी है, तू जाके मगर पढ़ लै, तेरी जोर दी हो जाएगी, बाद के अंदर खड़ा होके असर दे 4 फर्ज पढ़ लै। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दूसरी रिवायत मेरे पैगंबर ने फरमाया, जदों नमाज वास्ते तैयार हो जाओ, इरादा कर लो इतदाले अरकान, ठहर ठहर के नमाज पढ़ो, सकून ना नमाज पढ़ो, मुहब्बत ना नमाज पढ़ो, तसल्ली दे नाल नमाज पढ़ो। और तीसरे नंबर ते फरमाया अपनी नमाज अंदर खुशू पैदा करो, खुजू पैदा करो। ऐ सोने महबूब जी साड़ियां नमाज़ां दे अंदर खुशू खुजू किवें पैदा होएगा? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत दे मुताबिक नमाज असा पढ़नी शुरू कर दईए, साड़ी नमाज अंदर खुशू भी पैदा हो जाएगा, खुजू भी पैदा हो जाएगा। अगर नबी दी सुन्नत दे मुताबिक नमाज पढ़िए जिवें नबी पाक ने पढ़ के दसीए, हुण असीं किवें नबी दी सुन्नत दे मुताबिक पढ़िए? भाबियां को जाने अपनी नमाज दस दे, बरेलवियां को जाने अपनी दस दे, देवबंदियां को जाने अपनी दस दे, असा हुण किदे पिछे लगिए? मेरे प्यारे भाईओ, मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस पढ़न लगा। इस हदीस के अंदर एक सहाबी है, वो 10 सहाबा की मौजूदगी अंदर जाके पता की आंदे ने, ए नबी दे यारो
मैं अज ना तुहाडी मौजूदगी अंदर नमाज पढ़ के तुहानू दसदा वां रसूले पाक ने नमाज किवें पढ़ी है। मैं जिवें नबी पाक पढ़ते सन उवें पढ़ के तुहानू दिखाना चाहना। ऐ सहाबी रसूल ने नमाज पढ़ी है, तसल्ली दे नाल नमाज पढ़ के सलाम फेरिया। 10 सहाबा ने गवाही दी है, शहादत दी है और ओदी तरदीद नहीं की बल्कि ताईद करके फरमाते ने वाकया तन जिवें तुसा नमाज पढ़ी है रसूले पाक इंज ही नमाज पढ़ते सन। ऐ सहाबी रसूल रवायत अबू दाऊद दे अंदर, तिरमिज़ी अंदर अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नमाज पढ़न लगे ने। सब तो पहले की करते ने वुजू कर लिया है। ऐ ते मसले दा तुहानू पता है ना, वुजू करना फर्ज है, लाजम है। सुन्नत दे मुताबिक वुजू करके मुसल्ले ते आके किबला रुख होना भी लाजम है, फर्ज है। जिहड़ा जान बुझ के किबला रुख नहीं खड़ा हुंदा ओदी नमाज भी कबूल नहीं हुंदी। वुजू कर लिया, मुसल्ले ते आ गया, किबला रुख हो गया, हुण की करना है? सब नालों पहले नीयत करनी है। नीयत करनी है मैं केड़ी नमाज पढ़न लगा, किनियां रकतां पढ़न लगा। हुण जदों नीयत करन लगे ते एक कहंदा है कहो 4 रिकात नमाज फर्ज पिछे इमाम दे अल्लाहु अकबर। दूसरा आया कहंदा ना इंज ना कहो, हुण किदी मनीए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है सही बुखारी मुस्लिम दी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, के सारे अमाल दा दारो मदार नियतां दे ऊपर। नियतां ते रब फैसले करेगा। अगर नीयत ठीक है नमाज ठीक है, नीयत ठीक नहीं ते पूरी नमाज ठीक नहीं। हुण करिए ते की करिए? ऐ मेरे वीरियो, मेरे भराओ, मेरियो बहनों, लड़ना ने असां ते नमाज़ां ते मुनाज़रे ते मुजादले करने शुरू कर दिते ने। मैनू दसो जेड़ा मोमना दा मुसलमाना दा सब नालों इबादत दा मगज नमाज सी, ये भी कोई मसले मुनाजरे करने वाले सन भाई रमजान? जेड़े असा मुनाजरे करन बह गए हाँ, जिते मुजादले करन बह गए हाँ, जिते लड़ाइयां पा के बह गए हाँ। नमाज अव्वल तो लेके आखिर तक साड़ी लड़ाई मुकदी नहीं नमाज के मसले दे ऊपर। असा करना है ते की करना है? और यार सारे इमाम बाइज्जत ने, इज्जत वाले ने, मुकाम वाले ने, लेकिन सारे इमामा तो बढ़ के अगर इज्जत वाले इमाम इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद। यार मैं किसी अपने वीर दी, अपनी जमात दी तर्जमानी करा या अपने इमाम ते अपने खतीब दी गल सुनावा, मेरे भाई तो मेरी बात नो छड़ के ला के सुट के चला जा। मैं मेरे ते कोई तेरे ते इतराज, मैनू गुस्सा गिला नहीं, लेकिन नबी पाक सल्लम दी बात तुहानू सुनावा अगर छड़ के चले जाओ मेरे प्यारे भाइयों, लाजम है, जरूरी है नबी दी बात कौल फेल अमल आ जाए, आप दी बात नो समेना व अताना करना पड़ेगा। सारी दी सारी नमाज अरबी अंदर है, उर्दू अंदर है, पश्तो अंदर है, सुरैकी अंदर है, इंग्लिश अंदर है। केड़ी जुबान दे अंदर नमाज है? जरा नहीं इंज नहीं, मैं मसला तुहानू समझावा। सारी नमाज किवें में? अरबी दे अंदर है। यार अकल नहीं इंसान दी कम करदी, रब ने थोड़ी जी अकल भी दिती है। तेरा है जड़ी नीयत है अकल दे भी खिलाफ है, नकल दे भी खिलाफ है, कुरान हदीस दे भी खिलाफ है और साड़ी अकल दे भी खिलाफ है। यार सारी दी सारी नमाज अरबी दे अंदर और नीयत दी वारी आए पंजाबी ते उर्दू दे अंदर। की ख्याल है अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो नू पता नहीं सी कि रसूले पाक इंज नीयत करते ने और सहाबा इकराम ते अरबी दे माहर सन। अगर बनाना चाहते नीयत ते सहाबा इकराम अरबी दे अंदर नीयत बना के तेनू मैनू दस देंदे। नीयत जुबान तो ना लैन दा नाम नहीं, जो जुबान तो ना लवांगे इकरार है। हदीस अंदर नीयत दा लफ्ज आया है, नमाज वास्ते लाजम है, जरूरी है नीयत करनी। नीयत दिल दे इरादे दा नाम है। जदों तुसी घरों चले सो जुमा पढ़न वास्ते तुहाडी नीयत की सी? पता ही सी ना जुमा पढ़न जा रहे, ए टाइम जुमे दा जुमा पढ़न जा रहे सा। तुसी सारे राह कहंदे हुंदे मैं ते चलना जुमा पढ़न, मैं ते चलना जुमा पढ़न, मैं ते चलना जुमा पढ़न। बंदे ने उठ के ना बेवकूफ हो गया, सारे पता तू चलना मस्जिद च जुमा पढ़न, बा चुप करके चला जा। यानी जुबान तो अदा करन दी जरूरत ही नहीं, दिल दे इरादे दा नाम है। साडा इरादा सीगा कि असा जुमा पढ़न ही चले हैं, इनू कहंदे ने नीयत। जुबान दे नाल बोल के नीयत करनी नहीं,
ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਮਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ ਨੇ, ਅਸ਼ਰਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਜੰਤੀ ਸਾਹਬਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜ਼ਈਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ 3 ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼, 4 ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼, 5 ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਨੀਅਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਰਰੇ ਸਗੀਰ ਅੰਦਰ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਨੀਅਤ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਸੀਨਾ पाक ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ फरमाई है। मेरे पैगंबर बावुजू खड़े होके जो नमाज वास्ते खड़े होंदे नीयत करते जुबान चो बोल के नहीं बल्कि दिल दे इरादे दे नाल, दिल दे इरादे दा नाम है नीयत। नबी पाक दी हदीस है, तेरे नाल मेरी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मेरे वीर अगर नबी पाक दी हदीस सुनन तो बाद तू अमल नहीं करता यार तेरे नसीब है, मेरे ते लाजम फर्ज नहीं तेनू मैं फड़ के अमल करावां, तेनू मनावां। मेरा काम है दरवाजा खड़काना, मेरा काम दरवाजा तोड़ना नहीं, दरवाजा खड़काना मेरे ते फर्ज है। दरवाजा तोड़ांगा मैं मुजरम बन जावांगा। मैं दरवाजे तोड़न नहीं आया बल्कि दरवाजे तुहाडे दिलां दे खड़कान आया। मेरे प्यारे भाईओ ए एक आया जे एक तालिबे इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती और दीन लैके सच्चा हक्का पूरी अमानत दयानतदारी दे नाल तुहाडे दिल दी खिड़कियां खड़का के कह रहे हैं ए पंजाबी उर्दू दे अंदर नीयत बनाई गई है, दीन इस्लाम दा हिस्सा नहीं हिस्सा। हुण की करना है, अल्लाहु अकबर नीयत कर लईए ते हाथ उठाने ने। जदों हाथ उठान लगे फिर लड़ाई पै गई है। ये कहंदा इत्थे रख के हाथ उठाओ, एक कहंदा इंज करके कन फड़ के हाथ उठाओ, मेरे को फलां हदीस है, मेरे को फलां हदीस है। एक कहंदा इत्थे रखो, एक कहंदा इत्थे रखो, एक कहंदा चुक लो ठीक है, ना चुको तां भी ठीक है, पढ़नी ते नमाज है जिवें मर्जी पढ़ लवो। मेरे प्यारे भाइयों सारे ही गलत कह रहे हैं। सही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त हाथ उठाया कर दे नबी पाक दे सहाबी 10 सहाबा दे अंदर हाथ चुक के दसन लगे ने। हाथ चुकन दे नमाज अंदर 2 तरीके ने जो सही अल बुखारी सही अल मुस्लिम अंदर जामे तिरमिज़ी अंदर हदीस है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़वा मन का बई हदीस से लफ्ज़ ने हज़वा मन का बई रसूल पाक जदों तकबीरे तहरीमा कहन वास्ते हाथ उठांदे हज़वा मन का बई ए कंधियां दे बराबर उठांदे। ए वेखिया जे कंधियां दे बराबर ए कंधे ने ना, ए कंधियां दे बराबर। ए पहला तरीका। दूसरा तरीका उजू नहीं ही कन्ना दे बराबर। इत्थे बाज़ नूं गलती लग गई है कन्ना दे बराबर, एदा मतलब पता नहीं ए कन्ना नूं हथ लाने ने, नहीं 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 नहीं, कन्ना दे बराबर जिवें कंधियां दे बराबर है इवें कन्ना दे बराबर है। ए कंधियां दे बराबर हो गए। अगर कोई बंदा चाहे हाथ खड़े करना कन्ना दे बराबर, थोड़े जे चुक ले तो कन्ना दे बराबर हो जाणगे। रखने ए ही ने। नबी पाक दे सहाबी इस तरह नमाज पढ़ने लगे अल्लाहु अकबर। हदीस दे अंदर 2 तरीके ने, ए जड़े हाथ चुकन दे ने, ए जड़े कन फड़ लेंदे ने, कन्ना नूं हथ ला लेंदे ने या इत्थे रखदे ने, किसी सही हदीस दे अंदर मौजूद कोई ने। इस तरह करके अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हुण अल्लाहु अकबर कदों कहना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सही हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदी अल्लाहु अकबर कहंदे कहंदे हाथ बन लेंदे, कदी बाद अंदर अल्लाहु अकबर कहंदे, कदी पहले भी कह लेंदे हाथ बनन तो। ठीक है, तिन्ने तरह ठीक है। अल्लाहु अकबर कहंदे कहंदे हाथ बन लो, अल्लाहु अकबर बाद अंदर हाथ आ जान कोई गल नहीं, कोई हर्ज नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित है, जरा पहले थोड़ी जी देर आ जान कोई हर्ज नहीं, साबित है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मौजूद है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह सहाबी फरमाते ने 10 सहाबा दी मौजूदगी अंदर रसूल पाक कंधियां तक हाथ उठांदे कहंदे अल्लाहु अकबर। अल्लाह तू बड़ा ही वड्डा है, अल्लाह तू बड़ा ही वड्डा है, तू सारी कायनात दा बादशाह, तू वड्डा है। अल्लाह मैं हैंड जप हो गया वा, अल्लाह मैं हैंड जप हो गया। अल्लाहु अकबर। इंज कह लो, जरा तवज्जो करना, दिल दियां खिड़कियां दिमाग दियां खिड़कियां मेरी जुबान दे नाल लगाना।
ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਐਹਣ ਜਾਪੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਐ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਕੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪਰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਆਜਜ਼ ਇਨਕਸਾਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ तेरे द्वारे ते आ गया वा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सारी कायनात छोटी है लेकिन तेरी जात वड्डी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सारी कायनात दे गुनाह ते पाप करके मैं तेरे द्वारे ते गुनाह वड्डे करके तू वड्डा है वड्डे दे कोल वड्डे गुनाह लैके आ गया वा। इंज करके अल्लाहु अकबर कहंदा ते हथ बन लैंदा। जदों हथ बनन लगा एक बंदा अगे कहंदा मेरे कोल हदीस है तहत सुर्रा नाफ तो नीचे हथ बनो। एक कहंदा फौक सुर्रा नाफ तो उत्ते हथ बनो। एक तीसरा गिरोह आया कहंदा अला सदरी हथ सीने ते बनो। एक होर भी ज्यादा मुतशद्दद लोग आए कह लगे जरा हथ इत्थे करके बनो। इन्हां चारां दे अंदरों ना एक बंदे दी गल सच्ची सी। इधर वेखिया जी लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं। मैं दोबारा गुजारिश करांगा फिरका वराना मेरी गुफ्तगू ना उनवान हुंदा है ना मैं चाहना वा किसी नूं लड़ावां बल्कि मेरा मिशन हुंदा है जो कुरान पढ़ा हदीस पढ़ा जो समझा उन साफ बयान कर देवां। अगला शेख हाजी साहब मन्ने या ना मन्ने ओहदे नसीब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कोई सही हदीस नाफ तो उच्चे उत्ते वाली नाफ तो थले वाली कोई सही हदीस ज़ख़ीरा हदीस अंदर है ही कोई सही हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों कन्ना दी लोह तक हाथ उठांदे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ बांधे किथे हाथ बांधे सीने ते अल्लाहु अकबर कह के सीने ते हाथ बांधे। इब्ने खुज़ैमा दी रिवायत संदन सही रिवायत है। वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने सल्लैतु मअन नबी मैं नमाज पढ़ी रसूल पाक दे नाल। मैं नमाज पढ़ी रसूले पाक दे नाल। यार जेड़े बंदे ने जिस बंदे दे नाल नमाज पढ़ी होए वो बेहतर जानदा है या जिन्हें सुनी होए वो बेहतर जानदा है जिन्हें देखी होए वो ज्यादा बेहतर जानदा है। वाइल बिन हुजर फरमाते ने सल्लैतु मैं नमाज पढ़ी मान नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल। ए हदीस दे लफज पढ़न लगा ए हदीस दे लफज पढ़न लगा जरा तवज्जो करना। फा वाजा यादाहुल युमना फा वाजा वाजा दा माना की है रखना। फा वाजा पस रसूले पाक ने रखा यादाहू अपना हाथ रसूले पाक ने रखा अपना हाथ युमना ए दाया। युमना दा मतलब हुंदा है दाया। रसूले पाक ने अपना दाया हाथ रखा अलल युसरा बाएं के ऊपर। जब बाएं के ऊपर रखा अला सदरी ही सीने के ऊपर रखा बांधा। दूसरी रिवायत सैयदना हलब दे कोलो सही सन्नत दे नाल मौजूद है। तीसरी रिवायत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों भी हाथ बन्ने ने रसूले पाक ने सीने ते हाथ बन्ने ने। और सीने ते हाथ बन्ने किवें ने ए जेड़े इत्थों तक लै जांदे ने नहीं नहीं ये गुलफ करदे ने नहीं नाफ तो उत्ते ए सीने दे नाल दरमियान च रख के बड़े अदब दे दायरे अंदर रह के ए जेड़ा तरीका है ना ए रसूले पाक दी हदीस के अंदरों साबित शुदा तरीका है। ए जड़ा नाफ तो थले मेरे प्यारे भाईओ तहत सुर्रा हदीस है वे लेकिन संदन हदीस कोई सही नहीं। बिल्कुल संदन इहदे ऊपर कलाम किया गया रवायत सही ने। जदों सही हदीस साडे कोल मौजूद है असां ज़ईफ हदीस और मुनकते जिहदी सनद सही नहीं जिहदे रावी दा पता कोई नहीं जिंदगी दा पता कोई नहीं मजहूर रावी है असां उधर क्यों भजीए जदों सही हदीस रवायत मौजूद है। रसूले पाक ने इत्थे नहीं बल्कि मियाना रवि नाल ए सीने दे नाल हाथ बन्ने अला सदरी ही। और याद रखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस है सल्लो सल्लो कमा राअयतुमूनी उसल्ली। ऐ मेरे सहाबा नमाज इंज पढ़ो जिवें मैनू नमाज पढ़दियां वेखिया है। ए नबी पाक दी हदीस है। यार ए गल ते जरा तवज्जो करना माशरे अंदर बड़ा मशहूर मसला है। ए मसले दा अज मैं वंड पा के जरा ना साफ लफ्ज़ां अंदर बयान कर दिया। भाई रमजान भाई दिल तवज्जो करना
ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੇ ਸੱਲੂ ਕਮਾ ਰਾਈ ਤੋਂ ਮੂਨੀ ਉਸੱਲੀ, ਨਮਾਜ਼ ਇੰਜ ਪੜੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਮਰਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੋਏ, ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਮਰਦ ਦੀ ਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਮਰਦ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, अल्लाह जुल जलाल दी कसमें ज़ख़ीरा हदीस के अंदर कोई ऐसी हदीस है ही नहीं जिदे अंदर रसूल पाक ने फरमाया होए औरत दी नमाज वखरी है। आयशा तू औरतों नूं नमाज सिखा क्योंकि नमाज वखरी है, अलग नमाज है, तरीका अलग है। अल्लाह दी कसमें है हदीस आम हदीस है, सल्लू कमा राई तो मूनी। जिन्ने भी कायनात दे अंदर नबी दे उम्मती, वो उम्मती मर्दां अंदरों होण या औरतां अंदरों सारे नमाज इंज पढ़न जिवें रसूल पाक ने नमाज पढ़ के दसी है। हुण औरतां नमाज अंदर हाथ किथे बंदियां ने? अहमद भाई हाथ किथे बंदियां? मुहताब औरतां हाथ किथे बंदियां? किथे? पक्की गल है, कोई औरत कायनात अंदर ऐसी लैके आओ जिहड़ी नाफ ते हाथ बंदी है। ये औरत नाफ ते सीने ते क्यों बनती है? हदीस किथे वे? लियाओ हदीस। जेड़ी हदीस के अंदर तुसी पेश करोगे हदीस औरत सीने ते हाथ बनन वाली, वो हदीस मर्दां वास्ते भी है औरतां वास्ते। वो हदीस केड़ी? यही हदीस है सल्लैतु मान नबी, रसूल पाक दे नाल मैं नमाज पढ़ी। कौन है? मुज़क्कर कह रहे हैं। कौन है? नबी पाक दा सहाबी, औरत नहीं सहाबी कह रहे हैं, सहाबिया नहीं सहाबी कह रहे ने। मैं नमाज पढ़ी अला सदरी ही, रसूल पाक ने सीने ते हथ बन्ने। यार तेरे घर के अंदर सीने ते हथ बन, तू मस्जिद अंदर आके लड़ाई पाए झगड़ा पाए, नहीं मेरे प्यारे भाईओ हाथ सीने ते नहीं बनने नाफ तो थले, ना ना ना। और तेरियां औरतां घर के अंदर मस्तूरात सीने ते हथ बनन और नबी दी हदीस ते अमल कर। तू उठ के आके कहे नहीं नहीं तुस मर्दा ने बनने ने, धुनी तो थले बनने ने, नाफ ते ऊपर बनने ने। वैसे इंसाफ की गल है, ये कोई दलील नहीं देन लगा, ये मैं अपनी वैसे तुहानू अगली गल सुना लगा। तुहाडा दिल मनो, तुहाडा दिल ना मनो, लेकिन हदीस सुना देवां वो तो मनना फर्ज होएगा। ए मैं अपनी गल सुना लगा कि जटकी गल। जो बंदा किसी को माफ़ी मंगदा है, किवें माफ़ी मंगदा है? जरा कोई साथी माड़ा इशारा करके दसे, शेख साहब हाजी साहब किवें माफ़ी मंगदा बंदा? हाथ जोड़ के यार माफ़ कर दे, हैं माफ़ी मंगाउणी। अच्छा कभी किसी ने यह कीता होवे यार मैनू माफ़ कर दे, मेरे वाल वेख्या जी इंज उन्हें उल्टा पर्चा कराना है, उन्हें कहना नाले माफिया मंगना नाले मजाक करना है। हाथ किथे बने ने? यानी इत्थे बन के हाथ कदी माफी मंगी किसी ने? जो मंगदा इत्थे मंगदा, यानी फितरत भी ये कहती है हाथ इत्थे बनो। जो माफी मंगनी है हाथ इत्थे रखते हैं, फितरत भी कहती है हाथ इत्थे बनो। इत्थे बन के हाथ माफी नहीं मंगते मेरे प्यारे भाईओ मेरी भैनों। हाथ जदों बनने ने सीने ते बनने ने, वो मर्द होए वो औरत होए। हुण हाथ सीने ते बनने ने, हाथ बनन दे तीन तरीके ने, ज्यादा मशहूर तीन ने, जेड़े मैं समझे ने ना हदीस के अंदरों वो तरीके दो ने। सही बुखारी मुस्लिम इब्ने माजा अबू दाऊद तिरमिजी वगैरह वगैरह कुतब के अंदर आए ने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हाथ बांधते सन ना अल्लाह अकबर कह के ए सज्जे हाथ नूं खब्बे हाथ के ऊपर रख लेना, इत्थे बांध लेना। पहला तरीका जिहड़ा उलमा ने हदीस अंदरों दूसरा तरीका कढ़िया है ना, वो घुटने के ऊपर हाथ बन लेंदे ने। इत्थे बन लो या इत्थे बन लो, एडा कोई फर्क नहीं नजर आता। लिहाजा चलो तीन तरीके भी मान लो। पहला तरीका है हाथ बनन दा, सज्जे हाथ नूं खब्बे दे ऊपर रख के सीने ते। दूसरा तरीका है घुटने ते हाथ रख लो। और तीसरा तरीका जिरा दे लफ्ज़ आए ने, जिरा कहंदे ने ए कूहनी नूं, बाजू नूं, ए इत्थों तक जिरा होएगा, ए इत्थों तक हाथ बन लेने ने। ए कोशिश करया करो जदों बाद जमात नमाज पढ़ो उदों हाथ इत्थे बनो। क्यों? बास बंदे चेड़ अंदर इत्थे बन लेंदे ने, वो सज्जा भी तंग है खब्बा भी तंग नहीं। ए नमाज़ां दे अंदर जिदा नहीं करनी है। रसूल पाक ने इस वास्ते तरीके सिखाए ने। जदों कल्ले खड़े हो इत्थे बन लवो, तुसीं जिस वक्त जमात ना खड़े हो इत्थे बन लवो ताकि सज्जे खब्बे वाला उन्होंने कूहनी ना वजे, वो तंग ना होए। रसूल पाक इत्थे सीने ते हाथ बन लेंदे सन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ी है। सब नालों पहले अल्लाहु अकबर रफ़ा यदैहि। इंशाअल्लाह जिंदगी रही ते अगले जुम्मे इंशाअल्लाह
سینے تے ہاتھ بننے. اس تو اگے رسول پاک نے نماز پڑھ کے کیویں دسیا انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر یہ بیان کریں گے. سارے ساتھی وقت دے نال تشریف لے آیا جے انشاءاللہ. نماز نبوی ادا ترجمہ اور سنت کے مطابق سارے کتھے کتھے کی پڑھنا ہے. نماز رسول پاک نے کنج پڑھی ہے. ہاتھ سینے تے بنن تو بعد انشاءاللہ رکوع جانا ہے, رکوع تو سر اٹھانا ہے, پھر سجدے اندر جانا ہے, پھر سجدے تو پھر جلسہ استراحت کرنا ہے, جلسہ کرنا ہے, اس تو بعد پھر سجدے اندر جانا ہے. پہلی رکعت انشاءاللہ الرحمن پڑھ کے اگلے جمعے اندر انشاءاللہ الرحمن عنوان نو پورا کمپلیٹ میں انشاءاللہ بیان کر دیواں گا. اللہ جو سنیا سنایا میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.